Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. In this video lecture, we will learn about last topic of electricity, that is electric power. Electric power, rate of doing work, is called power. As we know that, and we already discussed in class 9, power, which means rate of doing work. How much work is done in a particular time, that is power, means P equal to W upon T. Now in this case we have electric power, same work done upon time, but in this case this work done is in form of electric work done, means motion of charge, motion of electrons and flow of electric current. That's why we have a different formula in comparison to mechanics. And now the definition of electric power is the rate at which electric energy is consumed in an electric circuit. Energy consumed by an electric circuit in a unit time is called electric power. For example, a particular equipment or a particular instrument consuming energy in 1 hour X, consuming X energy in 1 hour, then we can calculate the energy consuming by that electrical equipment with the help of this formula. In the previous topic, we have discussed power equal to voltage or potential into current. That means P equal to V into I. According to the Ohm's formula, V equal to IR, as we all know, then put the value of V in this formula, V equal to IR, then it will become I square R, the new formula of electric power. First is also a formula of electric power in terms of voltage and current, and second is in terms of current and resistance. If we have potential, voltage or resistance, then the next formula for electric power is P equal to V square by R. Put the value of I in the second formula according to Ohm's law, I equal to V by R. Then it will become V square by R square, R to R cancel, and the final formula is P equal to V square by R. All these formulas can find electric power for the different given quantities or for the different given values. Clear? The standard or SI unit of electric power is what? Standard or SI unit of electric power is what? Many equipments have a label or a tag where the electric power rating or voltage or a current rating mentioned on it. That is the power of electric circuit. For example, a bulb of 60 watt, a bulb of 100 watt, a bulb of 200 watt. This is the power of that equipment. Unit of electric power is what? P, according to the formula P equal to VI, unit of power is what? Then V, unit of V is volt and unit of I is ampere. Then we can say the another formula equivalent to watt is volt into ampere. In some questions, you will observe volt into ampere instead of watt. And it is also right, volt into ampere is also power of unit of electric power, and watt is also unit of electric power. Unit of electric energy. देखिए, इलेक्ट्रिक पावर एंड यूनिट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये दोनों डिफरेंट टर्म हैं. इलेक्ट्रिक पावर इज अ वर्क डन अपॉन टाइम or energy upon time. Electrical energy means power into time. Simple formula. Electric energy equal to P into T. Now the unit of power is watt, and unit of time is second. The unit of time is second, but second is a very small unit
to calculate electric power in the circuit. That's why we will use R. So the standard unit to calculate electrical energy used or consumed by any electrical equipment is always in watt into R. It is the standard unit of electric energy. But watt is also a smaller unit. We will use here kilowatt into R in standard form. Kilowatt into R. Why we use kilowatt? Because watt is very small unit and lot of equipment all consume power in kilowatt in R. That's why the standard unit will be kilowatt into R. For example, your AC and other heavy equipment like a geyser, like a immersion rod. And a definition of 1 watt is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. If an equipment uses 1 watt power up to 1 hour, then it is called 1 watt hour. For major equipment, for heavy equipment, it will be 1 kilowatt hour. It means 1 kilowatt power is used by equipment in 1 hour is equivalent to 1 kilowatt hour. Then this unit of energy or electrical energy, it's also called commercial unit of electrical energy. is किलोवाट. यानी हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट में या कॉमर्शियल सर्किट्स में या इंडस्ट्रियल सर्किट्स में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिससे आपकी घर में या आपके इंडस्ट्री में या आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो जनरेट होता है, जिसके बिहाफ पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर होती है. देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे पर्सन्स के माइंड में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोल से और वायर के थ्रू सप्लाई होते हैं अपने इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में या डोमेस्टिक सर्किट में, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंज्यूम होते हैं. देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इलेक्ट्रॉन बाहर से फ्लो नहीं होती है, वहां से एनर्जी फ्लो होती है. इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्किट के अंदर ऑलरेडी है, उनको जब एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक सर्किट में जो है वो कंडक्टर को अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल में सप्लाई वायर के अंदर कॉपर वायर को. तो कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसीलिए उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्किट में फ्लो करते हैं. और इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, और करंट फ्लो करने से इक्विपमेंट्स जो है वो ऑपरेट होते हैं, वो अपने रन होते हैं. तो यहाँ पर कॉमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर में होती है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर द मेजर और फॉर द हैवी इक्विपमेंट्स rating for the calculation of electrical energy is kilowatt hour. It is kWh. 1 kilowatt hour is equivalent to 1000 watt into 3600 second. अभी कैसे हुआ? 1 kilowatt. Kilowatt means 1000. Kilo means related to 1000. So 1 kilowatt is equivalent to 1000 watt. And hour, how many seconds in hour? 3600 second. So 1000 into 3600, it will become 3.6 into 10 to the power 6. 1, 2, 3, 4, 5 zeros and 3 point, that's why 6 zeros, then 10 to the power 6 watt into second. This watt into second is called joule. It is also a unit of electrical energy, and we can say it is the conversion of kilowatt hour into joule. तो किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं. आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है जूल में, देन 3.6 into 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जूल को कन्वर्ट करना है इसमें तो डिवाइड कर लीजिए. ये फॉर्मूला होता है किलोवाट आवर और जूल को कन्वर्ट करने का. ओके, तो देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इसी पर इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड, कि आपके पास दो इक्विपमेंट है. फर्स्ट अ टीवी सेट एंड सेकंड इलेक्ट्रिक टोस्टर, which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour और a 1200 watt toaster in 10 minutes. एक टीवी सेट है जो 250 वाट का है, वो 1 आवर तक हम उसको यूज करते हैं, और 1200 वाट का एक टोस्टर है, उसको 10 मिनट्स तक यूज करते हैं. अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि इसमें से कौन सा इक्विपमेंट ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करता है या डिसिपेट करता है.
ये एक बेसिक और सिंपल न्यूमेरिकल है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो टीवी सेट जो है उसकी पावर कितनी है 250 वॉट। कितने टाइम तक वो ऑपरेट कर रहा है 1 आवर तक। टोस्टर की पावर है 1200 वॉट और वो टाइम जो टेकन ऑपरेट कर रहा है वो 10 मिनट्स तक। तो पहले टीवी सेट की पावर से उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी किलोवाट आवर में या यूनिट्स जिसको आप बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में एक वर्ड अपन यूज करते हैं यूनिट्स, कितने यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई। ये डिवाइस ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है और कुछ डिवाइस कम यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो वो यूनिट्स यहाँ पर किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं अपन। तो 250 वॉट अपॉन 1000। अब देखिए मैंने 1000 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है वॉट में, और हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा किस में होना चाहिए किलोवाट आवर में होनी चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, because we know there are 1000 watt in a 1 kilowatt. To convert watt into kilowatt, we should divide by 1000, the 250 by 1000 into time, because it is a kilowatt hour. देखिए किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो R means 1, आपको टाइम गिवन है तो यहाँ पर टाइम है 1, that's why 250 upon 1000 into 1। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 25 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.25। सिंपल, ये 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 0.25 किलोवाट आवर, और क्या लिख सकते हैं 0.25 यूनिट्स। यानी एक 250 वॉट का आपका टीवी सेट 1 आवर तक कंटिन्यूसली आप उसको यूज करते हैं तो वो 0.25 यूनिट्स कंज्यूम करता है। अब आपके माइंड में आता होगा कि 0.25 यूनिट मींस क्या, कितना, इसको मनी में अगर कन्वर्ट करें तो जैसा कि अपना डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपन पे करते हैं उसका जो चार्जेस होता है पर यूनिट जो चार्ज होता है वो अप्रोक्सीमेटली एक बेसिक अपन ले लें 7 रुपीज होता है। कितना होता है 7 रुपीज। तो आपको 0.25 को 7 रुपीज, क्या होता है 7 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट अगर कंज्यूम होगा तो उसका 7 रुपीज चार्ज गवर्नमेंट हमसे लेती है। तो ये चार्ज 7 रुपीज एक यूनिट का है और आपका कितना हुआ है 0.25 यानी 1/4 यूनिट। तो एक 250 वॉट का टीवी 1 आवर तक चलता है तो वो 1/4 यूनिट यानी 7 का 1/4 कितना हो गया 7 का हाफ हो गया 3.5 और 3.5 का 1/4 यानी अप्रोक्स 1.75 रुपीज, हार्डली 2 रुपीज। 2 रुपीज आपका इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंज्यूम होता है जब 1 आवर तक वो टीवी चलता है। लेकिन उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 250 वॉट, और नॉर्मली जो घर में टीवी होता है वो 250 टू 230 वॉट तक का, बस इतना ही होता है। तो ये कंजप्शन है। तो फिर ऐसे कौन से अप्लायंसेस है जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो है आपका हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन और मेनली आपका इलेक्ट्रिक एसी। एसी जो है एयर कंडीशनर वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि उसका जो ये वॉट है, उसकी जो ये पावर रेटिंग है वो 1500 से 2000 तक होती है। यानी अगर वो 1 आवर तक चलेगा तो 1.5 या 2 यूनिट कंज्यूम कर लेता है, और जब 2 यूनिट कंज्यूम करता है तो 1 आवर में वो 14 to 15 रुपीज जो है उसका बिल जनरेट होता है। और अब देखिए अब सेकंड जो है हमारे पास 1200 वॉट टोस्टर जो है उसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1200 अपॉन 1000, 1200 अपॉन 1000, क्योंकि 1200 भी क्या है वॉट, किस में कन्वर्ट करना है किलोवाट। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ किलोवाट के बिना आप इसको यूनिट्स यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी किया वॉट में किलोवाट में कन्वर्ट, तो डिवाइड कर दिया इससे इनटू। अब देखिए ये 10 मिनट्स तक ही ऑपरेट हो रहा है, ये 1 आवर तक नहीं चल रहा है ये डिवाइस, ये 10 मिनट्स तक चल रहा है। तो 10 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में, क्योंकि आपकी यूनिट किस में होनी चाहिए किलोवाट आर में। तो आर में कन्वर्ट करना है तो 10 मिनट्स अपॉन 60 किया मैंने। क्यों किया 60? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60। क्लियर? तो अब यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, 12 अपॉन 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 कितना हो गया 60, 12 बाय 60 यानी 1/5। क्लियर? 1/5 मीन्स 0.2 और 0.20 किलोवाट आवर और यूनिट्स। अब देखिए टीवी ने कंज्यूम किया 0.25 यूनिट्स और टोस्टर ने किया 0.20 यूनिट्स। अब किसने ज्यादा किया, यही क्वेश्चन है, विच यूजेस मोर एनर्जी,
तो टीवी सेट जो है वो 1 आवर में ज्यादा एनर्जी यूज कर रही है और ये कम कर रहा है क्योंकि ये कम टाइम तक ऑपरेट हो रहा है। अगर ये भी 1 आवर तक होता तो ये टीवी सेट से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता। क्लियर है?